لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایوری شوڈ کول ڈاؤن, کام ڈاؤن. باری باری ہم آئیں گے, ایک ایک کا سوال میں جواب دے سکتا ہوں, اجتماعی سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. اچھا اکرم بھائی آپ سوال کریں, ایک منٹ اکرم بھائی آپ سوال کریں اور تعاون کریں. صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا, باپ کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات میری یہ ہے, کس کی بات کو آپ باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ تو نکلے تھے 70 سالہ جو سیاست ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں اس کو آزاد کرانے نکلے تھے. کیا ایسی مجبوریاں تھی کہ جس کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی جماعت سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت پڑی اور اپوزیشن لیڈر کو آپ نے منتخب ہونا پڑا؟ تو کیا ایسی مجبوریاں تھیں؟ آپ کا سوال کا بہت ہی شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سوال کیا جو شاید یہاں ہر جرنلسٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی کچھ غلط فیکٹس پہ مبنی ہے, کچھ پروپیگنڈا جو شاید کل سے سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز پہ چلایا جا رہا ہے, اس پہ بنیاد پہ آپ نے یہ سوال پوچھا گیا. تو میں ضرور اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو, سابق وزیر اعظم, وہ سینیٹر جس نے ہمارا بہت محنت کے بعد ایک مشکل لڑائی کے بعد, جس کا جتنا مشکل تھا آپ سب کو بھی پتا ہے, آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہو, آپ کو زیادہ خبر تھا کہ کس کے مقابلے کرتے کرتے اور کیسے ہم نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یونانیمس کینڈیڈیٹ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے سینیٹر بنایا, اور حکومت کو وزیر اعظم کے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں گھس کے شکست دلوائے. نیشنل اسمبلی کا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے وہ تو وزیر اعظم کا کانسٹیٹیوئنسی ہے, اور جب سے یہ کٹ پتلی حکومت آئے ہے اقتدار میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے مارچ 3 تک کوئی ایسا شکست نہیں ملا. اپوزیشن کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو, اپوزیشن کے ہاتھوں, جب تک ہم نے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی. یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے ہوا کہ کوئی سٹنگ وزیر اعظم کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں, جس کے پاس اتنا سپورٹ ہو, اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی ایم ایف کا کینڈیڈیٹ کو شکست دلوا کے پورا پی ڈی ایم کے سپورٹ کے ساتھ منتخب بھی کیا. پھر جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا ہے, یہ ایک پارلیمنٹری نارم ہے, یہ تاریخ یہ ہے, پاکستان کی سینٹ کا تاریخ یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن کا ہو, جس کا سب سے لارجسٹ مارجن پیپلز پارٹی کا ہی ہے, 21 ووٹس کے سینیٹرز ہمارے پاس ہے, تو ہمارا حق چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ بننے اور لڑنے کا ہے, اور اپوزیشن لیڈر کلیم کرنے اور بننے کا ہے. ہمارا خواہش تھا, ہم سب کا خواہش تھا, یا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم یہ عہدہ خاص طور پہ کہ اتنا شارٹ ٹائم میں, جب ہم نے ابھی گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے لڑوایا, ووٹس کے مطابق جتوایا, اور غلط دھاندلی کے طریقے سے انفارچونیٹلی وہ عہدہ نہیں سنبھال سکا, تو اس شارٹ ٹائم کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بنتا. تو یہ ہمارا رائٹ تھا, اور ہمارا خواہش تھا کہ ہم پورا پی ڈی ایم کو, جیسے پہلے سینٹ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے ہم نے پی ڈی ایم کو وہاں جتوایا, ویسے ہی ہم یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی جتواتے. افسوس کے ساتھ کہ آئی ڈونٹ نو کیوں اور وائی ایک جماعت
इतना कैसे कहूँ सख्त फैसला ले या इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाएं, मगर आप तारड़ साहब को, नून लीग का तारड़ साहब को आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट दें। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मगर हमारे तरफ से और हमारा पार्टी में इस उम्मीदवार ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था और ना ही किसी वक्त ने मुझे ने या नॉर डिड इट एनी टाइम मियां साहब, मौलाना फजल रहमान साहब speak to my father or myself or request us कि आपका ये जो हक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे, खास तौर पे इस सूरत में जहां गिलानी साहब को एक नाजायज तरीके से छीना गया, मगर हम ना सिर्फ ये सीट चाहते हैं मगर हम इस इंडिविजुअल के लिए ये सीट चाहते हैं। Hamid Sohra. अच्छा, I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. फिर आप कहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन पे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैं ऑब्वियसली इस सूरत हाल में हम मैदान में निकले नून लीग के पास और उनके जो जमातें ने उनके साथ दिया, उनका इज्तिमाई स्ट्रेंथ 26 सेनेटर्स थे और मेरा कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश में जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 मेंबर्स, ANP के 2 मेंबर्स, जमात इस्लामी का 1 मेंबर, फाटा के 2 मेंबर्स को हम मिलाते हैं तो हमारा भी 26 वोट्स होते हैं। आपका शायद सेनेट का रूल्स का नहीं पता हो, मगर जब 2 उम्मीदवार के पास 26 और 26 का या 2 उम्मीदवार का इक्वल स्ट्रेंथ हो तो उसको हक दिया जाता है जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी ऑपोजिशन लीडर बनता। मैंने जरूर साबिक नून लीग का सेनेटर, अब इंडिपेंडेंट सेनेटर दिलावर खान साहब का वोट का उम्मीद रखा, कोशिश भी किया और बड़ा खुश था जब हमें ये वोट हमारा काउंट में आ गया था। इस एक वोट के साथ में 27 मेंबर्स बन चुका था। फिर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का उम्मीदवार या जो जीता हुआ उम्मीदवार होता वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी होता। अब जो 3 इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स हैं वो दिलावर खान साहब के साथ एक ग्रुप में है। ना मुझे इस ग्रुप का इलेक्शन से पहले इल्म था, ना मुझे ये उम्मीद था या एक्सपेक्टेशन था कि दिलावर खान साहब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वोट्स होते, मगर मैं इनका ये फैसला वेलकम करता हूं कि वो ट्रेजरी बेंचेस से उठ के दिलावर खान साहब की क़ियादत में अब ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं। और जब वो ऑपोजिशन में बैठे और हमारे हमायत करते तो दूसरी जमातों को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए। हमने कभी एतराज नहीं किया जब पंजाब में बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ, और मैं समझता हूं कि कहने को बहुत कुछ है मगर यूसुफ रज़ा गिलानी की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा संभालना सेनेट के लिए भी जमहूरियत के लिए भी इस ओहदा और इस हाउस की इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए भी एक अच्छा कदम है। और मैं अपना
कैंडिडेट का और अपना जॉइंट कैंडिडेट का यूसुफ रजा गिलानी साहब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर का ओहदा संभालना एक बहुत अच्छा कामयाबी है, जिस पे मैं चाहता हूं कि अब, और मैंने हिदायत भी दिया है कि हम ना सिर्फ उन जमातों के साथ ऑपोजिशन में ऑब्वियसली काम करेंगे जिन्होंने हमारे साथ दिया, बट हर उस जमात जो शायद उनका ख्वाहिश किसी और था कि वो ऑपोजिशन लीडर बने, हम उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो एंड आई नो कि द ओनली वे कि हम हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं खास तौर पे पार्लियामान के अंदर, वो उस सूरत में हो सकता है जब हम मिलके काम करते हैं। मरियम नवाज ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा है कि ये पीपुल्स पार्टी के लिए खासतौर पे जरदारी साहब का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया कि उसके लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए कि बाप से वोट लेकर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाए, और छोटे छोटे फायदों के लिए लोग जो है वो अपना बयानिया तक तब्दील कर देते हैं। तो क्या अभी पीडीएम का इताब बरकरार होगा? क्योंकि बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं तो इसलिए कि मैंने पीडीएम का बुनियाद रखा, मैं तो चाहूंगा कि पीडीएम के इत्तेहाद बरकरार रहे, और मैं तो चाहूंगा कि हम हुकूमत को, ना सिर्फ हुकूमत को मगर हर इदारा को अपना दायरा में रहने का जो जदोजहद है, हम तो जानते हैं कि वो किसी शॉर्ट टाइम का जदोजहद नहीं है, हमें मुसलसल इसमें मेहनत करना है और इसके लिए सबको मिल के साथ काम करना चाहिए। मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूं। जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, एंड आई विल चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड टू सच एलिगेशंस। इरशाद संजरानी फ्रॉम बॉलीवुड। चेयरमैन साहब, यूसुफ रजा गिलानी की मुंतखब करने के बाद और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात सेनेटर शेर रहमान और दीगर आपकी जमातों की हुई, उस पर कोई तनकीद हुई, और रात ज्यूडिशरी प्रोग्राम में, शहादत खानदानी प्रोग्राम में कहा है बाकायदा सनाउल्लाह ने, फिर एक मतलब जनरल सेक्रेटरी नून लीग के एहसन इकबाल, उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी आप सिलेक्टर्स की जमात बन चुकी है, क्या आप लोग सिलेक्टेड हो गए? देखिए, एक तो आप क्यों चाहते हो, आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? आपको पता है हम तो नुकसान पहुंचा सकेंगे, और अगर हम इस निजाम को, इस हाइब्रिड निजाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर करना पड़ेगा। इसमें आपका भी भलाई है, इसमें मीडिया का भी फायदा है, तो मैं मीडिया से अपील करता हूं कि आपस में आप इन चीजों पर फोकस ना करें जिस पे हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री, और आप वहां फोकस करें जहां हम एग्री करते हैं। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। काजी आसिफ तकरीर हुई है, यहाँ पे ब्रीफिंग हुई है मरियम नवाज की, तो उसमें तो बहुत सी चीजें हैं जिसपे इसको हो सकती है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पीडीएम को बरकरार रखना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे उस हवाले से, तो आपने अभी कहा कि जो 3 इमरान हैं वो हिज़्ब इक़्तिदार से उठ के हिज़्ब इख्तिलाफ में आए हैं, तो ये कौन से नजरियाती लोग थे जो वहां से उठ के थैंक यू। अब मैं ना उनका नजरिया और ना उनके फैसले के मुताबिक आपको तफसील में बता सकता हूँ, वो इसलिए कि मेरा जो राब्ता या मेरा जमात का जो कोशिश था वो बिलावल साहब जो साबिक नून लीग का सेनेटर है, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए सपोर्ट किया। लेकिन जब भी कोई ट्रेजरी और जब भी कोई ट्रेजरी बेंचेस से उठ के ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, चाहे वो ये पंजाब असेंबली में हो या नेशनल असेंबली में हो, ये पूरा ऑपोजिशन का मुफाद में है, और वो लोग जो पार्लियामान के अंदर रहकर इन कुव्वतों को और हुकूमत को मुकाबला करना जानते हैं, उनको ये पता है कि जिस तरीके से हमने नेशनल असेंबली में सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को जितवाया है, और अगर आगे जाके हमें कामयाब होना है वज़ीर आज़म के खिलाफ
عدم اعتماد لے کر آنا یا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا، تو وہ ہم صرف تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم حکومت کے ممبرز توڑتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پورا اپوزیشن جو بھی ہمارے پاس جو بھی اپوزیشن کے ساتھ آپ کے بیٹھتے ہیں ان سے ایک خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں گے، ان کا ہمارا تعداد میں اضافہ کرنا کو ویلکم کریں گے۔ ارباب چندیو، میرا سوال پی ڈی ایم کو لڑانے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے حوالے سے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو راز ضرور بتائیں گے۔ چھوٹی عمر میں اور چھوٹے سیاسی سفر میں آپ نے جو ابھی کامیابی کی ان میں ایک طرف مولانا فضل الرحمان، ایک طرف نواز شریف ہے، ایک طرف آپ کے والد حسن علی جی ہے، تو اس کے بیچ میں آپ نے ان سارے کامیابی کو حاصل کیا اور بڑے جداجیوں کو شکست دی اور اپنے امیدوار کو تھوڑی وقت میں بڑی کامیابی دلائی۔ یہ سارے عوام یہ بات جاننا چاہتے ہیں، وہ راز ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کنسسٹنٹ رہتے ہو اور آپ کا پرسسٹنٹ ایک سٹینڈ رہتا ہے، اور آپ بڑا اچھا طریقے سے جانتے ہو چاندیو صاحب کہ پہلے دن سے شاید جب سے میں آپ سب کے ساتھ ادھر انٹریکٹ کرتے شروع کر دیا تھا آج تک میرا یہی موقف رہا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، ڈٹ کے چیلنج کر سکتے ہیں اور پارلیمان کا سپیس استعمال کر کے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو شکست بھی دلوا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو شکست دلوانے والی بات ہے یہ شاید کوئی اور نہیں مان رہا تھا، اور میں خوش ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت نے پارلیمان میں وہ امید اور پارلیمانی طریقہ کار میں اور جمہوری طریقہ کار اپنانے میں اور حکومت کو نقصان پہنچانے کو تقویت دی، بیکاز پارلیمان کا ایز این انسٹیٹیوشن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے تھرو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہوری طریقے سے تو وہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ اور ہمیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کا عزت کو برقرار کرنا چاہیے، بحال کرنا چاہیے، تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے ٹولز استعمال کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے، اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے۔ ایسی ایک شخص اور امید ہم یہ رکھ رہے تھے کہ اب جب پارلیمان میں شکست دلوانے والا جو آپشن ہے، جو طریقہ کار ہے وہ صحیح ثابت ہوا، تو پھر جو نہیں ایگری کر رہے تھے وہ اس جیت کے بعد، حکومت کی شکست کے بعد اس آپشن پہ زیادہ غور کرتے اور اس آپشن کو اختیار کرنے یا یوز کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ شبیر لاشاری، چیئرمین صاحب، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم حکومت کو ایسے گرا کر سکتے ہیں جب حکومت کے ممبر توڑے، اب حکومت کے ممبر آپ توڑ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں وہ آپ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں، تو آپ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں جب پی ڈی ایم ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزت کے ساتھ، برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کریں تو کامیاب بھی ہوگا، برقرار بھی رہے گا، لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے، اور ہمیں اپنے جذبہ اور جوش سے بلند رہ کر ان کو سائڈ پہ رکھے یہ سیاسی فیصلے کو لینا چاہیے۔ اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے، لمبے لمبے سانس لے، حوصلہ رکھے۔ میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جب گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے جیتے، ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جیتے۔ I mean at the end of the day الیکشنز میں، جمہوریت میں تو ہم آمنے سامنے تو ہوں گے، الیکشنز کا تو ہم لڑائی لڑیں گے، لیکن ہمیں ہر کسی کا جیت کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اور گیلانی صاحب نے ماضی میں بھی ہر کسی ایک جماعت کے ساتھ جو اس وقت شاید اس کے ساتھ نہیں دیے، کام کیے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ خاور خان،
आ गया ना जियो से खावर खान, खावर तुमसे मैं बाद में लेती हूँ। थैंक यू खावर खान। मेरा सवाल ये है कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जी हाँ बिल्कुल। जी जी हक है आपका। जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इसमें इस्लामाबाद के अंदर सब हुआ, क्या हम ये समझते हैं कि जो सूरत-ए-हाल रही है ये डीजल हो रही कितनी दोबारा से? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत है पाकिस्तान की सियासत में वो तो ख़त्म नहीं हुआ, वो इतना ज़्यादा कम भी नहीं हुआ, मगर एक सख्त और स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि हम इसी माहौल में रह के जमहूरी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि अगर हम सब मिलके आपस में मिलके ये कामयाबियां हासिल करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबियां हासिल करने के ज़्यादा चांसेस भी है और इस रजीम को और इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाना भी ज़्यादा चांसेस है। के इजलास में आपने इत्तेफाक किया था कि नून लीग का अपोजिशन लीडर होगा सेनेट में, तो क्या उस वक्त आप लोगों ने आपस में मुशावरत नहीं की थी या नहीं? मैंने आपको किसने बताया कि मैंने इत्तेफाक किया? मेरे सामने ने बिल्कुल दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। जो सरबराह इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट का जो यूनानिमस ऐलान था वो इस इजलास में हुआ था जिसमें सारे सरबराह बैठे थे। एक कमेटी बना था जिसने फैसला करना था डेप्यूटी चेयरमैन पे, और मेरा उम्मीदवार को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये था कि डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में भी आपने किसी का साइड नहीं लेना है, इसलिए हम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं और किसी का साइड नहीं लेना चाहते हैं। अब अगर उस और यही हकीकत है, अगर कोई समझता है कि वहां कोई जमातों या कोई ज्यादा जमातों ने ये तजवीज कहा या कि किसी को नून लीग से वो बनाना चाहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बनता ये कि वो मुझसे बात करता, अपना मेरा वालिद से बात करता, और अगर वो करते एक तो शायद हम मान जाते और दूसरा हम जरूर ये कहते कि आप जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो, हमारा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस के कन्विक्टेड ऑफिसरान हैं, वैसे हमारा पार्टी का बहुत से सवालात थे कि इनके हुकूमत में इन ऑफिसरान को कैसे अच्छे ओहदे मिलते रहे, उनको कैसे फिर से उसी पिंडी में पोस्टिंग मिला, फिर इस सब कुछ के बाद जब उनको सजा मिला और अब आपका सेनेटर उनका लॉयर है और उनका आखिरी पेशी मार्च 8 पे बीबी शहीद कत्ल केस पे इनका नुमाइंदा ये कर रहा था, तो आप कैसे समझते हो कि मुझसे पूछे बगैर, मुझसे फोन करे बगैर, मुझे समझाने के बगैर कि आपकी क्या जरूरत है कि इसी एक शख्स यही है या कोई और नहीं हो सकता, आप कैसे समझते हो कि मैं उनका हमायत करता या मैं अपना पार्टी को कहता कि अपना गिलानी साहब के बजाय जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और कुछ सियासी जमातों की मिली भगत की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ, जिन्होंने शहीद बीबी के साथ सियासी जदोजहद लड़ा, उसके बजाय में इनको वोट तो इंसानियत के मुताबिक प्रोटोकॉल्स के मुताबिक बात तो बनता, फोन कॉल तो होता, और उस सूरत हाल में हम कोई ना कोई कंसेंसस शायद निकाल सकते थे। लेकिन मैंने आपके से या किसी और से ये बात नहीं छुपाया था कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को दिलवाना चाहता हूं और इसके लिए लड़ रहा हूं, और मैं इस ओहदा को नून लीग के दिलावर खान, ANP, फाटा और JI के वोट्स के साथ ऑलरेडी हासिल कर चुका था, और हम वेलकम करते हैं उन दूसरे लोगों को जो दिलावर खान की क़यादत में अब ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ रहे हैं।
पंजाब में जो रोजगार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का लोग बना के वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और परवेज खिलाई को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और यही बुनियादी वो इख्तलाफ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बीच जो अब दरारें ज्यादा तेज हो रही है। क्या ये वाकई सही है? हम जरूर, जहां तक अदम एतमाद की बात है, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। हमने तो उसी एक्शन प्लान, उस एपीसी जिसको मैंने बुलाया था, उसी का एक्शन प्लान में हम सब ने मिलकर डाला कि हम अदम एतमाद और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा बातचीत उस वक्त वहां हुआ था वो पंजाब के लिए, स्पीकर के लिए और नेशनल असेंबली के लिए बात हो चुका था। और जहां तक कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है। कायदे हिज़्ब-उल-खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है, वो बनता था। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग के साथ भी जरूर बात करना पड़ेगा और दूसरे जमातों के साथ और दूसरे वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस सिलसिला में मैं समझता हूं कि जब हम पंजाब को इस कठपुतली हुकूमत से बचा सकते हैं, पंजाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, वो इस बुजदार के कठपुतली के नीचे कैसे आप इस हुकूमत को चला सकते हो? अब कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 साल तक इनके हाथों में छोड़ सकते हो? अब कैसे आज तक उनका एक बजट को इतने सारे वोट्स रखते हुए, इतने सारे 100 से ज्यादा ऑपोजिशन का मेंबर्स होते हुए आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया? ये तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है कि बुजदार का एक बजट को चैलेंज नहीं किया गया है। और जब हम ऑपोजिशन में रह के कहते हैं कि पंजाब को बचाओ, पंजाब को बचाओ और किसी और को वजीर आला बचाए, इमरान के हाथ से पंजाब छीने, उसको मेयर इस्लामाबाद की हैसियत जब वो उसके पास है तब उस पर हमला करे और उसको निकाले, तो ये एक सियासी स्ट्रैटेजी के मुताबिक सियासी फैसला है। और किसी को, अगर किसी को कोई एतराज था क्यू लीग पे या किसी और को वो हमसे शेयर करता ना, वो हमारा ये एतराज मेरे साथ शेयर हुआ। और जब भी मैं कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ नेशनल असेंबली या कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ प्रोविंशियल असेंबली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो मैं समझता हूं कि अगर पीडीएम का ये फैसला बनता है तो हमें जरूर इस पे गौर करना चाहिए, जोर देना चाहिए। हम समझते हैं अगर हम जिद्दोजहद कर रहे हैं पार्लियामान की बहाली के लिए और पार्लियामान के इख्तियार के लिए, तो आप इस्तीफा देने से पहले अगर आपने अदम एतमाद का कोशिश ही नहीं किया तो फिर आप वो पार्लियामानी स्पेस सीट कर रहे हो, आप एब्डिकेट कर रहे हो एक बड़ा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और मैं समझता हूं कि जो टफ टाइम हमें देना चाहिए था बुजदार सरकार को पार्लियामान के अंदर रह के और पार्लियामान के बाद, वो नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके होगा। चेयरमैन साहब, मरियम नवाज इस्तीफे देने की तरफ अगर जाती हैं कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? और वो तो आप उनको ठंडा पानी पीने का मशवरा दे रहे, लंबी सांसें, वो तो बाप से लड़ने के लिए तैयार हो रही है, बाप से। तो आप बताएंगे उनको कि बाप की बहुत अहमियत है सियासत में, अगर बाप नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा? नहीं, मैं वाकई मरियम शरीफ साहिबा को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूं कि उसको ये अहम रोल मिलना और अहम स्पेस मिलना पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी बेहतर है और पंजाब की सियासत के लिए भी एक अच्छा कदम है। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है या कोई मसला आया है, मैंने हमेशा उन सूरत हाल में मरियम शरीफ साहिबा पे कभी तनकीद नहीं किया, कभी भी नहीं किया और ना ही करूंगा। मैंने नहीं किया था तो अब मैं क्यों करूं? मैं अपने रवैयों में कोई तब्दीली नहीं लेकर आता हूं। आपको याद होगा कि जब मरियम शरीफ साहिबा गिरफ्तार हुए तो मैं सबसे पहले पार्लियामान में खड़ा होकर मरियम शरीफ साहिबा के लिए आवाज उठाया था। और जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पिछले कुछ
दिनों में रहा है, इस इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद और कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स के बावजूद मैंने अपना पार्टी को हिदायत दिया था कि जब मरियम शरीफ साहिबा को नैब का पेशी हो रहा था तो आप जरूर साथ जाए, इज़हार यकजहती दिखाएं, बिकॉज हम सियासी इख्तिलाफात रख सकते हैं मगर किसी के साथ हम ये नहीं चाहते हैं कि जुल्म हो या गलत तरीके से ये नैब का जो हर सियासतदान के साथ होता है। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा मुस्लिम लीग की क़यादत से कि वो गौर करे कि असल में उनके इत्तेहादी कौन हैं और कौन इनको ये गलत मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप झगड़ा ले। और हम जानते हैं, इसलिए हम नस्ल पर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट्स का मुकाबला करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये मिलके ये लड़ाई लड़ा जा सकता है, अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। यही वजह था कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ रही थी तो उसने इतनी ही कोशिश की कि साथते थे, पूछते थे, पार्टी के अंदर पूछते थे कि अब तो मुखालिफ होते हैं, सियासत एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, तो वो कहती थी कि हमें पंजाब में उनको चैलेंज करना पड़ेगा तो हम दोनों उनको चैलेंज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो नजरियाती नून लीग का अब तरीक़ेकार है ये बरकरार रहे, मगर दूसरों पे इस किस्म का गैर मुनासिब इल्ज़ाम लगाना हमारा ताल्लुकात में इजाफा नहीं करे। ये बताएगा कि मौजूदा हालात में ऐसा तासुर मिल रहा है कि पीडीएम का जो गठजोड़ था वो सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों तक महदूद था, तो क्या अब आप हुकूमत को टाइम देंगे कि वो अपनी हुकूमत पूरी करे या कोई नया लाए अमल में आपके? मैं जानता हूं कि दूसरी जमातों के क़यादत कायदीन ने शायद ये इशारा दिया कि वो हुकूमत को अपना टर्म पूरे करने का मौका दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है और हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जमातों के साथ भी ये जोर देंगे, हर किसी के साथ ये जोर देगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हम एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान इस मुल्क को पिछले 3 साल में हुआ है वो आपके सामने है। हर पाकिस्तानी इमरान खान का बोझ डेब्ट की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में, उनके बिजली के बिल, उन्हें खाने पीने के बिल, उनका दवाइयों के बिल की सूरत में भुगत रहे हैं। और सारे ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनको हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए, उनको हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और हुकूमत को सहूलतकार को होंगे। और हम चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को, इस माहौल को, इस मुल्क को वो खुद मुख्तारी, वो आज़ादी और वो फ्रीडम दिलवाए जो हम सिर्फ मिल के दिलवा सकते हैं। एक मिनट जो है वो आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो आपके पीपल्स पार्टी के साथ हैं उनको वाज़ेह तौर पर सिलेक्टेड कहा है, मैंने जवाब दिया है। उनका बयानिया चलता रहता पीटीआई के लिए कि वो सोचते हैं कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है, तो क्या लड़ाई का फायदा वो खुद नहीं बन रही पीडीएम में, क्या करेंगे? मेरा मसलसल ये कोशिश होगा कि हम अपोजिशन जमातों को साथ मिलके चलाएं और हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाएं। अगर मैं समझता कि इस्तीफा से हुकूमत को नुकसान पहुंचता मैं आज उस पर जोर देता। अब ये इशू को हम अपना CC में उठाएंगे, फिर से इस पे गौर करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे।